दिस इज नॉट जस्ट फॉर यू किया मैंने, दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। हाँ, तो लास्ट सेमेस्टर का मेरा ऑलमोस्ट $3,000 वे हुआ था, क्योंकि लास्ट में हाँ I'm Harshita and I'm from Assam. Like come to US to do your undergrad? मैंने जैसे बोला रिसर्च किया था, तो लिंक्डइन प्रोफाइल्स में जाके जब देखा तब ऑल द पेस ग्रेजुएट्स हैड मोर इंटर्नशिप्स एंड पार्ट टाइम जॉब्स देन अदर स्टूडेंट्स. Happens in Inspire? इंस्पायर इज लाइक करियर कोचिंग, सो वो लोग आपका लिंक्डइन प्रोफाइल एंड देन रेज्यूमे वो सब देख के दे सेट यू अप सो दैट यू कैन अप्लाई टू. The cost of living? कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी के लिए मैं बहुत कम में चल रही हूँ अभी. 1,000 to 1,200. like if you ask anybody here about their room rents, they are paying like around $500, $600. Yeah. So I'm paying only $350. Everyone, thanks for taking out time and sharing your views and experience about studying at Pace University, both Sachin and both of you, both at masters and at undergrad level. Thank you so much, Piyush. It was nice talking to you. Yeah, definitely. If you are planning to study in the US, watch the video until the end and subscribe to the channel. Hi Harshita. Hi, I'm Piyush. Hi, nice to meet you. Please come inside. I know it's a little bit raining outside. He's Sachin. Hi. Harshita. You are from PACE? Yeah. Yeah, me too. I was graduated from PACE in May. So you are pursuing master? No, I'm bachelor's. Are you studying Oh, bachelor's here? yeah. Ah, okay, nice. Why don't we have a seat here and have a conversation? Yeah, because we've already gone around the campus and every building is closed today. We spoke a lot. It's your time to give some insight. So thanks Harshita. Now we have an undergrad student also from Yeah. Pace University. अभी तक हम लोग सचिन से बात कर रहे थे, अपनी मास्टर्स इन साइबर सिक्योरिटी की स्टोरीज शेयर कर रहे थे. तो हर्षिता थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करो अपने आप को. Where are you from in India and what were you doing there and how did you why did you choose Pace University? क्या पढ़ रहे हो? थोड़ी अपनी कहानी Okay, सुनाओ. yeah. So I'm Harshita and I'm from Assam. Assam. Oh, wow, very good. So where in Assam? Assam, Duliajan. It's near Dibrugarh. Yeah. Yeah. So I'm from Duliajan and I came here to do my bachelor's in business economics. Did your 12th from Duliajan? हाँ, वहीं से किया. हम लोग का DPS था उसमें. DPS में. तो DPS से किया और उसके बाद I came here and I've been here for I think 3 months now. Yeah, this is my first semester. Yeah. शुरू हाँ, अभी शुरू. अभी तो बिल्कुल पार्टी टाइम चल रहा है, ओरिएंटेशन हुआ है. Yeah, first year. I told him. पार्टी करिए. पहले साल, yes. But good. So you are so what subjects did you have in 12th class? I was in arts. In arts? Humanities, yeah. Humanities. So I had economics and maths. But maths था. हाँ, maths था. Maths चाहिए most like for the most class. I can take maths again if I didn't have हो जाता, but it's easier to get in with maths, yeah. नहीं तो good है that you are having a base in mathematics. Which Yeah. is good. So how much did you score, if I may ask, in 12th? Yeah, sure. 12th I had like I think 85 to 86%. 86%. Yeah. Marks. That's very good. And you were in CBSE board? Yes, CBSE. CBSE board. BPS है तो CBSE board. हाँ, है. CBSE So board. very good school, CBSE board, very good marks. And why did you choose US to do your undergrad? Mainly because financial city है. हाँ. Obviously, like I'm taking business econ, so यहाँ में exposure बहुत ज़्यादा है उसका. And this college also hosts a lot of events that help you. हाँ. So वो सब LinkedIn में profiles देख के check करके वैसे ही choose किया था. पूरा रिसर्च करा अपना and then you Research decided कि किया. Pace University में business economics में bachelor's करेंगे. हाँ. And which other universities did you apply for? I applied to ASU and I think NYU or I'm forgetting others. ASU में admission आ गया था? हाँ, ASU में आ गया. ये भी इसका भी Yeah, है. Sachin I also already had got an it ASU there. admit, Okay. but he also picked Pace University. But they Yeah. didn't have the cyber in Oh. master, so Oh yeah, I got into NYIT too. NYIT. Yeah. So and then you picked Pace University. Yeah. And what was that you found better at Pace as compared to other universities that you got admission in? First, definitely location. Location. That's established. And more than that, मैंने जैसे बोला research किया था, तो LinkedIn profiles में जाके जब देखा तब all the PACE graduates had more internships and part-time jobs than other students. And also few other universities बोला था कि जब alumni से बात किया बोला था कि ज़्यादा online classes थे rather than offline. So I didn't want that. So PACE. So you wanted more offline classes. Yeah. जो कि Pace University Yeah, offers. yeah, they provide. Most classes are in person. Yeah. More internship opportunities, more job opportunities. Yeah. Location तो बहुत ही amazing है, no Yeah. doubts about that. And of course it's a popular university as well. So
Overall, तो good choice, happy for you. And अभी 3 months हो गए यहाँ पर. हाँ. Right, as bachelor student, you find that there are a lot of international students who start coming here for bachelors. Yeah, there are international students. We have a communication group, international students communication group. तो वहाँ में every I think Friday and Thursday होता है, and all international students gather there to talk about their experiences. And how would you say that, you know, not just you but other international students, how are they finding Pace University? It's good actually. It's really good. हाँ, तो and especially international students के लिए हम लोग का एक program है Inspire, and we get a lot of exposure from that and learn a lot. What happens in Inspire? Inspire is like career coaching. So वो लोग आपका like LinkedIn profile and then resume वो सब देख के they set you up so that you can apply to jobs and like अभी तो internships. 3 महीने हुआ यार, 3 महीने में तो बिल्कुल रेडी कर रहे हैं. That's very good हाँ. actually. Earlier Yeah. you start, the better it is. And knowing what all career opportunities are possible, earlier you are able to discover. Yeah, definitely. And you know, decide what direction you can definitely be better prepared. So that is good. So अभी तो 3 months हुए हैं. So what are some of the biggest shocks you got? कि आसाम की लड़की सीधा न्यूयॉर्क आ गई. Had you been to US before? No, never. Never. This is my first time. तो सीधा न्यूयॉर्क में लैंड हुए. हाँ. क्या शॉक लगा? Definitely the city shock. हाँ. वो तो हो गए because आसाम में भी I was from Duliajan, so that is countryside और ये तो वो definitely था और लोग बहुत different हैं. तो वो एक है. And yeah, and there are a lot of cultures here to explore. वो बहुत अच्छा लगा कि सिर्फ अमेरिकन ही नहीं, I am exposed to a lot of different cultures, so वो अच्छा है. एंड अंडरग्रेड में तो और ज़्यादा हाँ. इंटरनेशनल एंड Yeah. मतलब बहुत सारी डिफरेंट कम्युनिटीज. Yeah, undergrad में है. Sorry to interrupt you guys. Like, I just want to add one point. So, cultural shock and all the stuff. Like, मैं जहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, तो वहाँ पे most of them are blacks, right? So, they are from Africa. Some of them are from Ghana, West Indies. मतलब wide variety of culture are there. So, वहाँ पे है ना, मतलब बेसिकली यहाँ पे एक चीज़ अच्छा है जो अपन बोलते हैं ना कि वर्क कल्चर यहाँ का बेसिकली मैं बोलता हूँ सबसे बेस्ट है. वर्क कल्चर बहुत सही है यहाँ पे. जब जहाँ पे इंडिया में जो जैसे बोलते हैं यार बहुत स्ट्रेस है काम के रिलेटेड, आपको शायद बहुत मतलब ऑलमोस्ट 50% कम लगेगा यहाँ पे, क्योंकि वर्क कल्चर द बेस्ट. काम के टाइम पे काम करो. या काम के टाइम पे काम चिल करो. मतलब आपको कोई बोलेगा नहीं, कुछ नहीं, आप काम करते रहो. आपको ऐसा आपके मैनेजर आपके सर पे आके नाचते नहीं रहेंगे. आपको जिस वे से होगा उस वे से काम करो, बट अच्छे से काम करो बस. मैं थोड़ा तुम लोग का वर्क कल्चर खराब कर रहा हूँ. थैंक्स कि नहीं कुछ नहीं, ऐसे भी घर पे ही बैठे थे, बारिश हो रही थी ना, तो कुछ वैसे भी मूवी देखते बैठने वाला था मैं भी. दोनों लोग मूवी देखने वाले हैं. कोई नहीं, चलो अच्छा है, थोड़ा काम करवाते हैं. बट तो अर्शिता थोड़ा सा और अपने एक्सपीरियंस बारे में बताओ. तो वन वाज ऑफ कोर्स कल्चरल शॉक, सिटी Yeah. शॉक, बट व्हाट वर सम ऑफ द यू नो वेरी प्लेजेंट थिंग्स दैट यू गॉट? लाइक बहुत ही मज़ा आ गया, अरे तो बहुत ही अच्छी चीज़ थी. First of all, Diwali हुआ यहाँ में celebrate, so that was really exciting. And also I got an opportunity with Amplify Me. तो वो लोग एक event host कर रहे थे about sales trading and investment banking. तो एक simulation था. So वो बहुत एक अच्छा opportunity था. I got a certificate and everything. और पता भी चला कि I'm interested in that and I'm like willing to pursue that. तो those are the two like highlights so far, yeah. वेरी गुड. तो थोड़ा सा अभी खर्चे के ऊपर बात करते हैं. तो हाउ आर यू फाइनेंसिंग योर एजुकेशन एट पेस यूनिवर्सिटी? अभी तो पापा सब दे रहे हैं. पापा दे रहे हैं. पापा दे रहे हैं. पापा द ग्रेट. पापा देख रहे हैं. पापा दे रहे हैं अभी. लेकिन लाइक आई एम लुकिंग फॉर पार्ट टाइम. होपफुली मिल जाएगा. As a undergrad, is it easier to get like a on-campus part-time? आई एम नॉट श्योर, अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया है, बट बोल रहे हैं कि अगर इफ़ यू डू द इंस्पायर प्रोग्राम देन इट विल बी अ लॉट मोर ईजियर टू अप्लाई. वो लोग बैच देते हैं कंप्लीट करने से. So that becomes a bit sorted for you. But how much is the tuition cost for you? So I got a scholarship of 20,000 per year. So $20,000 per year की scholarship मिल गई. yeah. Wow. या So वो scholarship मिल गई. उसके बाद भी है like I think I pay around 20,000.
per semester. Okay, so So- 20,000. Yeah. So it was 30,000 per semester otherwise. Yeah. Yeah. So now you are getting, now you have to pay about 20,000 per semester. Yeah. How much is your cost of living? कॉस्ट ऑफ लिविंग अभी के लिए मैं बहुत कम में चल रही हूँ अभी. So it's like about 1,000 to 1,200. 1,200. Yeah. And This is not just for you. Yeah. This is for other guys as well. Those who wanna come here. Like आप जब आओगे ना यहाँ पे यूनिवर्सिटी में ना एक प्रोफेसर से ना अच्छा रिलेशन बनाना. जब भी आओगे यहाँ पे अगर एक अच्छा रिलेशन बनता है ना यहाँ पे ना टीचिंग असिस्टेंट के जीए के पोजीशंस वगैरह होते हैं. अगर आपका रिलेशन प्रोफेसर के साथ अच्छा है ही माइट गिव यू द अपॉर्चुनिटी. सो उसके अंदर वो पूरा आपको tuition ही waive हाँ हो जाता है. उसका ट्यूशन फी वेव हो जाएगा, वो सब हो जाएगा. एंड एक और चीज़, अगर लास्ट सेमेस्टर वगैरह कुछ बचा होगा आपका और आपका थोड़ा पैसा भरने का वगैरह कुछ होगा ना, एक प्रोफेसर होता है जिससे अपना रेपो अच्छा बनाना. एंड में बोलना है कि ऐसा ऐसा मेरा फाइनेंस का थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो इफ़ इन केस अगर कुछ मेरे लास्ट सेमेस्टर के फीस वगैरह अगर कुछ वेव हो सकता है, कोई अच्छा प्रोफेसर होगा ना तो पूरे लास्ट सेमेस्टर पूरा फी तेरे को वेव कर देगा. तो प्रोफेसर के साथ आपका रिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. किया है मैंने, प्रोफेसर लोगों दैट्स से व्हाई आई एम सेइंग. हाँ, तो लास्ट सेमेस्टर का मेरा ऑलमोस्ट $3,000 वेव हुआ था, क्योंकि लास्ट में हाँ नहीं आई डोंट वांट टू से द नेम बट ये थोड़ा सा सेम कॉलेज में हो, बाद में मिलके हाँ, बात हाँ वो मैं बता दूंगा. बट आपका मेरा थोड़ा अलग है ना कोर्स, तो course अलग है. प्रोफेसर्स अलग है. बट मैं बोल रहा हूँ कि प्रोफेसर के साथ अच्छा रिलेशन बनाना, ताकि यू नो जस्ट इन केस फ्यूचर में उनको अगर टीचिंग असिस्टेंट या जीए की अगर पोजीशंस खुल रही है, मिल जाएगा आपको, दे देंगे वो अगर बात करोगे. एंड तो लाइक लिविंग एक्सपेंस में जैसा होता है अबाउट $1,000-1,200 तो उसमें से रेंट कितना रहेगा? 650 है मेरा. 650. कहाँ रहते हो? ब्रुकलिन. ब्रुकलिन. सो यहाँ पर फर्स्ट ईयर में सच यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन इज नॉट मैंडेटरी. नॉन मैंडेटरी, पेस में नहीं है. बहुत महंगा है. बट पेस में मेरा एक दोस्त रहता था फर्स्ट सेमेस्टर, ही वाज लिविंग इन अ पेस हॉस्टल, बट इट वाज टू एक्सपेंसिव. It's about 10,000 for one semester. या वन सेमेस्टर. One semester just living, और वो भी ट्रिपल रूम में. वो भी ट्रिपल Yes. ओके सो बेटर है भाई ब्रुकलिन रहो, हाँ. जर्सी सिटी रहो एंड वहाँ से ट्रैवल कर लो. Yes. एंड दैट्स गुड दैट दे गिव यू द फ्लेक्सिबिलिटी. Yeah. सो एज एन अंडरग्रेजुएट अभी बहुत छोटी हुआ या मैं थोड़ा सा पेरेंट्स ओवर प्रोटेक्टिव होते हैं, हाँ. तो हाउ डिड यू मैनेज टू फाइंड दैट अपार्टमेंट एंड यू नो योर रूममेट्स कैसे करा? फर्स्ट ऑफ ऑल तो ग्रुप्स रहते हैं, तो मेरा ऑलरेडी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का ग्रुप था पेस में. सो आई जस्ट आस्क्ड एनीवन लाइक इज एनीवन इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग अ रूममेट, बिकॉज मैं रूम ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ. दिस वाज व्हेन यू वर इन इंडिया या फिर या बहुत पहले, बहुत ये पहले. बिफोर आई इवन अप्लाइड फॉर अ वीज़ा. अच्छा हाँ. सो मैंने रूममेट ढूंढना पहले से शुरू कर दिया था, घर बाद में ढूंढा था. तो फिर आई हैड अनदर ग्रुप, मतलब बहुत ऐसे ग्रुप्स ज्वाइन किए. फेसबुक में गई एंड देन ग्रुप्स ज्वाइन किए, तो उसी में से घर वैसे ही मिल गया. मतलब वो लोग पोस्ट करते रहते कि दिस इज अनदर हाउस इट्स अवेलेबल, तो घर मिल गया था. और एक इंडिया से रूममेट, बुक कर लिया था घर. हाँ बहुत रात, मतलब रात को किया था, बिकॉज ऑब्वियसली टाइम डिफरेंस होता है, तो ब्रोकर से बात करके एंड वो सब करके. That is one thing which I think a lot of students कई बार उसमें गड़बड़ भी आता है because they have not seen the actual property. Yeah. और वो accommodation book कर लेगा, फिर यहाँ पर आगे कुछ नहीं है, अलग ही मजा मामला निकलता है. भी मैंने वीडियो कॉल में बात किया था, ओनर से बात किया था, एंड लास्ट का थोड़ा सा पैसा आके दिया था. Those are I think important tips to know for your Yeah. accommodation booking. And you are happy with the place? येस आई एम हैप्पी, बट आई थिंक नेक्स्ट ईयर थोड़ा और क्लोज ढूंढूंगी, बिकॉज बहुत बड़ा हो जाता है, लंबा हो जाता है. लंबा हो जाता है दूसरा. हाँ. Where you living? ब्रुकलिन सनसेट पार्क. Oh, It's like 40-45 minutes. right, got it. I'm in Jersey City. Why you didn't prefer Jersey? Yeah, that was my next question. No, because I already found a house in Brooklyn. उसके बाद फिर जर्सी सिटी में भी ढूंढ रही थी, but then everything just mashed up. Happened and हाँ. Okay, okay, roommates okay. मिल बन मिल गए. हाँ, तो फिर जर्सी सिटी में मैंने पहले जर्सी सिटी एम किया था, but then मिल गया. Jersey City and Brooklyn are two areas जहाँ पर आप students रह सकते हैं. They Yeah. are coming to Pace University. That's good information for students. And You know what? I'm the luckiest person. I would say. You are Because lucky. yeah, You got it. why I'm saying why? No, not about that.
Like if you ask anybody here about their room rents, they are paying like around $500, $600. Yeah. So I'm paying only $350. Oh wow. For a This is single room? yeah, for the single room. Oh, wow. I'm the I'm the only one who is paying so less money for the room rent. So you have to find out those kind of stuff, like managing your finances to do that. You have to find out so many options. You have to Yeah. figure out, like you just can't just search one apartment and you are like, no, I'll just take it. No, you just have to search something else, like Yeah, no, for better next year option. definitely I'll look at the फर्स्ट Jersey ईयर again. हमेशा थोड़ा सा, बट फर्स्ट ईयर हाँ. में भी if you have been able to get a good apartment, Yeah. थोड़ा दूर है कोई बात नहीं. But I think next year you can start optimizing. No, definitely इस some साल of my से friends सीख जाओ. here अभी यहाँ के friends रह रहे हैं जर्सी ये अगर के. सचिन यहाँ से जा रहा होगा तो पता कर लेना. हाँ हाँ, अरे मैं यार जब हम लोग यहाँ पे आए थे ना, तो ऐसा हेल्प करने वाला कोई नहीं था यार. तो मुझे ना बहुत अजीब लगता है वो चीज़. तो मुझे जितने लोग पूछते हैं, मैंने अब तक 6 लोगों को, मेरे कंपनी में 6 लोगों को रेफरल दिया है. उसमें से 3 लोगों को इंटर्नशिप मिला है. मैंने रेफ़र किया था. मुझे लगता है ना, यहाँ पे जितना आप हेल्प करोगे ना उतना बेटर है. मैं क्योंकि यहाँ पे कोई नहीं होता, मतलब ना माँ बाप होते हैं ना कोई होता है यार. यहाँ पे कोई नहीं है, आपका कोई नहीं है यहाँ पे, लिटरली कोई नहीं है. आपके जो दोस्त हो वगैरह भी बोलते हो ना आप, तो इंडिया में जैसे दोस्त बनते हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे नहीं बनते वो वाले. यू कैन एग्री विद मी. They are all she trying to compete she for knows the same what I'm one. saying exactly. Yeah. तो मैं जितना हो सके ना उतना मैं पॉसिबली ये ट्राई करता हूँ कि यार Thanksgiving का दिन है यार, लोगों को हेल्प करो. हेल्प करो. मैं लिटरली परसों ही 2 लोगों को फिर से मैंने रेफर किया. मेरी कंपनी एक पोजीशन ओपन हुआ था, आई जस्ट रेफर देम. लाइक मुझे भी ना, मतलब मैंने आपको बोला था कि नेटवर्किंग बनाने का मेरा एक अलग ये है जो सबके लिए वर्क नहीं करेगा. मैं क्रिकेट खेलता हूँ यहाँ पे, एवरी सैटरडे एंड संडे मैं क्रिकेट खेलता हूँ. तो वहाँ पे जो क्रिकेट खेलने वाले आते हैं ना सारे, मतलब अच्छे कंपनी में जॉब्स करते हैं. उसके थ्रू मैंने इतने कनेक्शन बनाए, इतने अच्छे लोग थे ना उन लोगों ने. लिटरली वो लोग अपने कंपनी के करियर फेयर पे जाके जो जॉब मेरे रिलेटेड है वो मेरे को लिंक भेज रहे हैं. भाई ये है, खाली है पोजीशन, इसके लिए मैं तेरे को रेफर करूंगा, तू अप्लाई कर दे अभी के लिए. लिटरली मैंने ऐसे कनेक्शन भी बनाए. तो मतलब जो भी है, मतलब जैसे मैं बहुत, हाँ, मतलब कॉलेज में इवेंट्स होते हैं, पार्टिसिपेट करो, वहाँ पे मिलेंगे. मतलब ऐसे वो ना, वो ज़्यादा अच्छा होता है. जैसे अपन यहाँ पे करियर फेयर में मिल गया, वो इतना काम में नहीं आते वो चीज़ें. बट आप अगर एक्स्ट्रा करिकुलम में अगर आप ऐड करते हो, इवेंट में जाते हो, तो वहाँ पे एक बॉन्डिंग अच्छा होता है. उस टाइम पे जब क्रिकेट खेलते हो, जो भी मैं XYZ जो भी करते हो, वहाँ पे बॉन्डिंग एक अच्छा होता है. वो अच्छा, मतलब ज़्यादा हेल्प करने का ट्राई करेंगे. एंड जब आपने यहाँ पर अप्लाई करा तो डिड यू गिव एनी एग्जाम्स लाइक SAT, Yeah. ACT? SAT दिया था और IELTS दिया था. तो जो एडमिशन प्रोसेस था आपका, उसके अंदर डिड यू फाइंड इट टू बी स्ट्रेट फॉरवर्ड और वाज इट मोर कॉम्प्लिकेटेड? ऐसे कुछ Admission process? एडमिशन स्टार्टिंग में बहुत कॉम्प्लिकेटेड था, बट देन जब थोड़ा और रिसर्च किया एंड देन आई आल्सो गॉट हेल्प फ्रॉम द कंसल्टेंसी, सो डेफिनेटली तब ईजियर हो गया था. हाँ. एज एन अंडरग्रेजुएट स्टूडेंट US के वीजा इंटरव्यू के अंदर डिड यू फाइंड इट टफ और या फिर कैसे, हाउ डिड यू मैनेज दैट? मैंने बिल्डअप बहुत कर लिया था कि टफ होगा, बट देन कुछ नहीं पूछा. सो 2 क्वेश्चंस पूछे. आई थिंक ही आस्क्ड मी कि क्या करने जा रहे हो और क्या गोल है आफ्टर ग्रेजुएटिंग. सो उतना ही पूछा और फिर अप्रूव कर दिया. सो आई थिंक वही है, मेरे को भी लगता है कि कई बार ओवर थिंक करते हैं उसको. हाँ, बट अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट में मेरे को थोड़ा लगता है कि उनमें फियर थोड़ा सा ज़्यादा होता है. बट यस, तो एंड नाउ दैट यू आर हियर, ट्रैवल करते हो ब्रुकलिन से, डू यू फाइंड इट सेफ? डू यू फील अनसेफ? नॉट 100% सेफ. डेफिनेटली, मतलब देखा है मैंने, बहुत केसेस हुए हैं जब थोड़ा लगता है कि, बट देन आई चेंज द कार, सो तब ठीक हो जाता है. मतलब कार, मतलब बेसिकली जो मेट्रो का जो हाँ. डब्बा है, वो हाँ डब्बा बदल देते हैं. हाँ डब्बा बदल देते हैं. हाँ, लोग सोचेंगे कार है तो ये तो कितनी कार में घूमती है. नहीं, वो डब्बा बदल देती हूँ. एंड रात को नहीं आती. रात को मैं क्लासेस लेती ही नहीं, तो मैं जल्दी घर आ जाती हूँ. नहीं, तो आई थिंक इट इज इम्पोर्टेंट टिल यू अंडरस्टैंड द वेज ऑफ द सिटी, वेयर टू बी, वेयर नॉट टू बी. इट इज इम्पोर्टेंट टू बी मोर कॉशियस. बट स्लाइटली यू वुड से कि ऐसा नहीं है कि रात में बिंदास कहीं भी घूम रहे हो. You have to be careful. हाँ, केयरफुल तो होना पड़ेगा. मैं निकली ही नहीं हूँ आज तक रात में. आई थिंक बिफोर लाइक 6 आई एम होम. न्यूयॉर्क में इतना कुछ ये नहीं है. न्यूयॉर्क में घूम सकते हैं. न्यूयॉर्क द सिटी हु नेवर स्लीप.
I'm तो just यहाँ like पे new here, तो अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब हम लोग रात को 12 1 बजे पार्टी को, बॉलीवुड पार्टी वगैरह होती थी मैनहट्टन में या कहीं पे ब्रुकलिन में, तो जाते थे हम लोग 1 बजे, तो मेरे को सेफ लगा। बट ब्रॉन्क्स साइड वगैरह थोड़ा सा है उस साइड, तो उस साइड जाना अवॉइड करना। You need to understand how to get around, Yes. when to, where to. Yeah. वो सारी चीजें थोड़ी सी नॉलेज अच्छी हाँ, थोड़ी सी नॉलेज हो जाने से लगेगा कि नहीं अभी आप तो 3 महीने हुए, आप सीख जाओगे धीरे धीरे सब। एंड खाना बनाना आ गया? अभी थोड़ा है। घर में तो कुछ नहीं बनाती थी, बट अभी थोड़ा बना रही हूँ। यहाँ पे सब लोग आके मास्टर शेफ बन जाते हैं। मास्टर शेफ बन जाता है, इतनी मेहनत करके बनाया होता है। बट हाउ आर यू एबल टू मैनेज टाइम बिटवीन क्लासेस, बिटवीन गेटिंग योर वर्क डन एट होम? मील प्रेपिंग डेफिनेटली, ऐसे मैं बना के रख देती हूँ थोड़ा, एंड देन उसको राइस तो डेफिनेटली माइक्रोवेव करना। वो बार नहीं बनाती। और बाकी सब इधर मैं चिकन काट के रख दिया, मैरिनेट करके रख दिया, तो वो लाइक 2-3 मील्स के लिए हो जाता है। सब्जी काट के रख दिया, फ्रोजन वेजिटेबल्स ले लिया, दाल में डाल दिया, हो गया। तो दाल तो 2 सीटी लगता है, हो गया। देखो 2 सीटी लगाने में मुझे कितनी आसानी से लगी है। पहले घर पे जगह के कुछ भी नहीं करते थे, बट वेरी गुड। सो आई एम वेरी हैप्पी दैट यू आर टेकिंग चार्ज ऑफ योर लाइफ एंड स्टार्टिंग टू टेक कंट्रोल ऑफ ऑल योर पर्सनल थिंग्स। स्टडीज में भी ध्यान दे रहे हो, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करना शुरू कर रहे हो, गेटिंग टू नो मोर पीपल। यू बीन एबल टू मेक फ्रेंड्स? या लाइक बने हैं थोड़े एक लाइक इंटरनेशनल फ्रेंड्स ज़्यादा जल्दी बन जाते हैं इधर। बिकॉज़ वो लोग भी सब हाँ ढूंढ रहे हैं किसी को। राइट। नहीं वो इंडियंस लोगों पे ना बहुत ज़्यादा भरोसा करता है। मैं जहाँ पे मैं काम करता हूँ ना, वहाँ पे वो लोग थोड़ा सा ना, जैसे इंडियंस होते हैं तो थोड़ा सा उनको ऐसा होता है यार, उनको ऐसा कल्चरल ऐसा बोलते हैं ना, उनको बहुत सही लगता है वो चीज़ें। हमारे यहाँ पे ऐसा होता है, हम सारे फैमिली मिलके रहते हैं। यहाँ पे वैसा कल्चर नहीं है ना, यहाँ पे लोग अकेले रहते हैं, ज़्यादा डिप्रेशन में होते हैं जैसे यहाँ पे। तो उनको अपना कल्चर बहुत पसंद है। वैसे फूड सबसे बढ़िया उनको अपना फूड लगता है। मैं जब भी लेके जाता हूँ ना, तो मैं दे देता हूँ मेरे कलीग्स को, उनको बहुत पसंद है अपना फूड वगैरह। मुझे देखने से सब लोग वही लाइक इंडियन फूड इज रियली पॉपुलर। So that's a way to make friends and network, Yeah. लोगों को खाना खिलाओ, अच्छा चिकन बनाओ है। नहीं आए भी हैं, मेरी एक अमेरिकन फ्रेंड और एक स्लोवाकियन हुई थी, दोनों मेरे घर में आए। दिवाली उन लोगों ने सेलिब्रेट किया, रंगोली बनाया, वो दिया कलर किया। Wow. तो खाना मैंने बना के दिया। That is important and such as sharing है कि home sickness बहुत जाती है, तो having good people, good friends around you is very important. Yeah. Yes. But that is good. और what would you like to share to students जो कि US आना चाहते हैं undergrad करने के लिए या Pace University आना चाहते हैं? What is your advice to them? एडवाइस देने के लिए तो मुझे 3 महीने हुए हैं, बट लाइक एज फार एज आई हैव सीन, मैं तो सब इवेंट्स में जाती हूँ। एनी इवेंट आई कैन फाइंड, आई गेट एन ईमेल और एनीथिंग, आई गो टू एवरी सिंगल इवेंट। तो उससे डेफिनेटली इन्होंने भी बोला कि बहुत कनेक्शंस बनते हैं। तो अभी सीनियर से मैं बात करती हूँ, तो उनसे एडवाइस मिलता है बहुत, तो दे हेल्प अ लॉट। ऑल्सो प्रोफेसर्स डेफिनेटली हेल्प अ लॉट। मुझे कुछ लाइक इवेंट्स लाइक कॉम्पिटिशन्स हैं जो पेस होल्ड करता है, लाइक द फाइनेंशियल समथिंग टीम, एंड देन और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स होते हैं जो पेस पार्टिसिपेट करते हैं। तो उसके सब के बारे में मुझे प्रोफेसर ने बोला। सो आई वेंट टू हिज ऑफिस आवर्स एंड ही लाइक आस्क्ड मी व्हाट आई एम इंटरेस्टेड इन, और उसके हिसाब से क्या क्या आई शुड डू, विच क्लासेस आई शुड रजिस्टर इन, वो सब एडवाइस प्रोफेसर ने दिया। तो जितना सकती हूँ आई गेट इन्वॉल्व इन द कम्युनिटी एंड एवरीथिंग। बेसिकली एक्टिव रहो, हाँ। मैक्सिमम लोगों के साथ इंटरेक्ट करो, फैकल्टी, क्लासमेट, सीनियर्स, एवरीवन, सबकी नॉलेज यूज कर पाओ। Yeah. Definitely, I think that's a very important message for everyone. Thank you so much, Harshita, for the time that you have shared with us and all the information and coming out on Thanksgiving Day. So thank you all, and thanks Sachin for showing us the city as well. So thank you everyone. Thanks for taking out time and sharing your views and experience about studying at Pace University, both Sachin and Harshita, both of you, both at masters and at undergrad level. And if you guys like this video, then subscribe to our channel and share with all your friends जो कि US आना चाह रहे हो for studying, doing their masters, undergrad, चाहे cyber security पढ़ने चाह रहे हो या business economics. If you know other people, share it with them. It's very useful content, understanding what will it take for you to be successful. And if you liked it, press the like button and share it
with everyone who is ready to come and study in the US. Thank you everyone, have a good day, and I'll see you in the next video. Thank you so much, Piyush. It was nice talking to you. Yeah, definitely. If you found this useful, make sure you like, share, and subscribe to the channel.